this is the story that is coming in, which has in fact been in the news yesterday when Pooja Khedkar, who is a probationary IAS officer in Maharashtra, is in the eye of a storm over alleged misuse of power and VVIP entitlement after Republic's relentless coverage. Centre is now cracking the whip. The Prime Minister's office has sought a report from Pune collector. Meanwhile, a team has also been formed to probe the case. Here's the full report detailing the story. This is Pooja Khedkar, a 2023 batch trainee IAS officer, hailing from a family dedicated to public service. However, she is making headlines for reasons not so noble. Disability, mental illness, and even blindness. It's lies galore by the VVIP IAS trainee. Exclusive WhatsApp chats accessed by Republic exposes the very entitlement. The proof of her high-handedness is on record. The centre is cracking the whip. The Prime Minister's office has sought a report from the Pune collector. Top sources say a one-member team has also been constituted by the centre. Even as the investigation gathers pace, an all-out war of words has now broken out. किसी की कैबिन में एब्सेंट में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे, वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए? वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं? तो ये सब जो बातें हैं, ये क्वेश्चंस खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। But the Khedkar case has shunned the spotlight on the many faults in our UPSC system. Well, some of the changes that have been suggested includes that this entire process should be streamlined and the examination process perhaps could be completed within a year's time. Not just that, promotions and postings should rather be based on merit and also on periodical tests and reviews. UPSC perhaps could also give more importance to subject experts. It's time for a complete overhaul of our civil services. Let's go straight across to my colleague who's joining us, Satyaprakash. Satyaprakash, take us through what is happening right now. You know, what we see is that this trainee IAS officer, Pooja Khedkar, has made VIP demands and has been using fake certificates. Very serious allegations coming in, and we know that the PMO has also constituted a team to investigate this matter. What is the latest in this story? देखिए, जब से मामला उठा है तब से महाराष्ट्र की सियासत भी हलचल शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेता भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पूजा का पूरा मामला आया, जिस तरह से उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की है, जिस तरह से पुणे में उन्होंने गाड़ी मांगना, घर मांगना, साथ ही जो पर्सनल गार्ड को मांगना, साथ ही घर को मांगना, कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से 3 जून से लेकर 20 जून तक जिस तरह से पुणे में उन्होंने जिस तरह से हलचल किया, जिस तरह से अपने डैडी को ले जाकर पुणे कलेक्टर ऑफिस में अपनी केबिन बनवाना, सारी चीजों के लेकर जिस तरह से मामला आया और जिस तरह से पुणे के डीएम ने महाराष्ट्र कैबिनेट सेक्रेटरी को साथ शिकायत की, कहीं कहीं सारी चीजों को लेकर महाराष्ट्र में ये मुद्दा गर्म हो चुका है। विपक्षी पार्टियां सभी मांग कर रही है कि इस मामले की जांच किया जाए। अब जो सामने आ रही है जानकारी की जो सेंटर की कमेटी है वो इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से कास्ट के जो उनका सर्टिफिकेट है उसकी भी जांच किया जाएगा और इसमें क्या क्या खामियां हैं सारी चीज की जांच किया जाएगा। सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले में जो भी खामियां पाई जाएगी उस पर कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल जो है पूजा का ट्रांसफर वाशिम में हुआ है, असिस्टेंट कलेक्टर पद पे हुआ है, कल ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन लगातार कहीं कहीं पूजा सवालों घेरे में है इस मामले को लेकर। Right.
Satya Prakash, as you are heading to Washim, what is the importance of Washim here? We know that she was transferred from Pune to Washim. She's joined her duties, but had she spoken out, has a family member or her Pooja spoken out on these allegations which are against her? देखिए, पूजा ने वाशिम में असिस्टेंट कलेक्टर पद पे ज्वाइन कर लिया है। कल ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। कल वो मीडिया से बात करते हुए बचती नजर आई। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हमारा अधिकार नहीं है। उन्होंने एक बात कहा कि हमारा अधिकार नहीं है इस मुद्दे पर बात करने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पुणे में काम किया, जिस तरह से वहां पे जाके हड़कंप किया, 3 जून से लेकर 20 जून तक लगातार अपनी डिमांड करती रही और लगातार वहां पे जो सीनियर ऑफिसर थे उनको परेशान करती रही। यहाँ तक कि एक असिस्टेंट जो वहां पे अधिकारी थे उनके केबिन पे कब्जा कर लिया था। कहीं कहीं लगातार जिस तरह से वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग कर रही थी, अपने पिता को ले जाकर वहां पे पूरे बिल्डिंग में मुआयने कराया और अपनी केबिन बनवाया। फिर कहीं कहीं सारी चीजें सामने आई। उसके बाद कल जब उनका परसों ट्रांसफर हुआ था और कल जब पुणे में उन्होंने वाशिम में जिस तरह से वो ज्वाइन की और उसके बाद सवाल पूछा गया कि आपने जिस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की और डिमांड जिस तरह से किया और जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? तो उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए मीडिया से बात करने की इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ उनके परिवार वालों से लगातार मीडिया के लोग संपर्क कर रहे हैं, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे थे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, उस पर कुछ जवाब देंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच का विषय बना हुआ है। सेंटर की एक कमेटी आई जिस मामले की जांच करेगी। जी।